नरेंद्र मोदी जी फिर से बंगाल आए और मंच से खड़े होकर भाई घिसा पिटा भाषण दिया। तृणमूल भ्रष्ट है, तृणमूल घोटालेबाज है, लेकिन जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ पलटवार किया गया और वो पलटवार इतना जोरदार था कि बीजेपी के दावों की पोल वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोल दी गई। सामने आए कुणाल घोष और शशि पांजा। कुणाल घोष ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला और कहा नरेंद्र मोदी कांच के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। जिन भ्रष्टाचार के आरोपों को वो तृणमूल पर मर रहे हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं है। उल्टा बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला वो वीडियो, एक तरफ प्रधानमंत्री का भाषण तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का नारदा घोटाले में रिश्वत लेते हुए पुराना वीडियो दिखाया गया। सवाल साफ है, मोदी जी हिम्मत है तो पहले अपने दामन के दाग साफ कर लीजिए। जिन नेताओं को कभी आपने भ्रष्टाचारी कहा वही आज आपकी पार्टी में मंत्री, सांसद, विधायक बनकर बैठे हुए हैं। कुछ जेल से निकलकर बीजेपी में आए, आज सब पाक साफ हो गए हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या भ्रष्टाचारियों की भर्ती? দেখুন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনি কিছু কথা বলে গিয়েছেন। বিস্তারিত পয়েন্ট টু পয়েন্ট উত্তর ডক্টর পাঁজা দেবেন। আমি শুধু একটু কথা বলি। কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ে গেছেন। যে যে অভিযোগগুলো বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে চলছে, যেগুলোর উনি কোনো উত্তর দিতে পারেন না, উনি সেই কথাগুলো বলছেন অন্যের দিকে আঙুল তুলে। কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়লেন। তৃণমূল কংগ্রেস যে অভিযোগগুলি তুলেছে, প্রশ্নগুলি তুলেছে, একটা উত্তর দিতে পারেননি। বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করে ব্যাকফুটে আছেন। ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য ওই টেলিপ্রম্পটারে লিখে আনা বাংলা আর চোখে তাকিয়ে মুখ এদিকে, চোখের মনি এদিকে, বাংলা টেলিপ্রম্পটারে লিখে আনা বাংলা বলছেন। পেছনে অমিত মালব্য, যিনি বলেছেন বাংলা ভাষা কোনো ভাষা নয়, বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা। যে বলছে বাংলা ভাষা ভাষা নয় তাকে পাশে নিয়ে টেলিপ্রম্পটারে লিখে আনা বাংলা বলে উনি কি বোঝাতে চান? বলছেন দুর্নীতি নিয়ে। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগের দিনই বলেছেন, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা থেকে আরম্ভ করে, মহারাষ্ট্র থেকে অজিত পাওয়ার থেকে আরম্ভ করে, বাংলার তথাকথিত বিরোধী দলনেতা থেকে আরম্ভ করে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিজেপি আঙুল তুলেছিল গ্রেপ্তারি চেয়ে, তারা তদন্ত এড়াতে বিজেপিতে গেছে এবং তারা নরেন্দ্র মোদীর দলের দিকে বসেছেন। উনি দুর্নীতি নিয়ে বলছেন। আমরা একটা ভিডিও, একবার নরেন্দ্র মোদীর মঞ্চে থাকা লোকের ভিডিওটা একটু দেখে নিই। দুর্নীতি নিয়ে বলছেন, মনে রাখবেন নরেন্দ্র মোদী দুর্নীতি নিয়ে বলছেন। নরেন্দ্র মোদী যখন দুর্নীতি নিয়ে বলছেন তখন তার পাশে যিনি বসে আছেন তার বিরুদ্ধেই বিজেপি দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে, তাকে গ্রেপ্তারের দাবি করেছে এবং তারপরে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ে গেলেন নরেন্দ্র মোদী। कुणाल घोष का हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा जितनी बार पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल आएंगे उतनी बार बीजेपी की सीटें घटेंगी और तृणमूल की सीटें बढ़ेंगी। लोकसभा चुनाव में दिखेगा कि बीजेपी की सीटें घटी और तृणमूल की बढ़ी। और अब 2026 विधानसभा में तृणमूल रिकॉर्ड सीटों के साथ सत्ता में वापस लौटेगी। আমরা 16 সালে দেখেছি, আমরা 21 সালে দেখেছি আব কি বার 200 পারের ডায়লগ। 24 সালের লোকসভা নির্বাচন, বাংলায় বিজেপি কমে গেছে, তৃণমূল বেড়ে গেছে। कुणाल घोष ने मोदी जी से दूसरा सवाल किया कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है भला?
केंद्र सरकार की। लेकिन जब जब चूक होती है, दोष किस पर मर दिया जाता है? बंगाल पर। ये कैसी राजनीति है मोदी जी? কি বলেছেন ঘুষপেটিয়া বাড়ছে, ঘুষপেটিয়া কি করে বাড়তে পারে? দেশের সীমান্ত যদি অরক্ষিত হয়, সীমান্তের দায়িত্বে কে? বিএসএফ। কোন দপ্তর? স্বরাষ্ট্র দপ্তর। মন্ত্রী কে? অমিত শাহ। বাংলা সীমান্ত নিয়ে যদি দুজন ঢোকে, দুজন, ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে 20 জন ঢুকছে, কয়েকদিন আগে ধরা পড়েছে রোহিঙ্গা সহ। ডবল ইঞ্জিন সরকার কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছুটছেন। যতগুলো উনি অভিযোগ ভিত্তিহীনভাবে তোলার চেষ্টা করেছেন, প্রত্যেকটা অভিযোগে বিজেপি নিজে অভিযুক্ত। কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়েছেন, আর থুতু ওপর দিকে ছুঁড়লে সেটা নিজের মুখে পড়ে নরেন্দ্র মোদী। আপনি বাংলার দিকে যা যা অভিযোগ করতে চেয়েছেন তার প্রত্যেকটার উত্তর আমাদের কাছে রয়েছে। আপনার উত্তর দেয়া যেগুলোর উচিত ছিল, আপনি একটা প্রশ্নেরও উত্তর না দিয়ে আপনি একটি রুটিন বিবৃতির নাটক করে চলে গেলেন। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के दौरान पहली बार प्रवासी मजदूर की मौत हुई थी। वो बंगाल की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की 13 साल की बच्ची थी, जो तेलंगाना में खेतों में काम करती थी। लेकिन बीजेपी बार बार बंगाल को ही बदनाम करती है। ये कैसी राजनीति है? शायद झूठ और फरेब की राजनीति है। एक दिन कुछ कहा जाता है, अगले दिन उसी बात से पलट जाया जाता है। कुणाल घोष का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं। लेकिन बंगाल की जनता सब समझ रही है, सब कुछ देख रही है। बीजेपी का झूठा प्रचार अब बेअसर है। देखिए, देश का विकास तभी होगा जब भाजपा जाएगा, तो ये तो पूरा देश जानता है। तो इसीलिए खुद को डिफेंड करने के लिए वो एंटी भाजपा गवर्नमेंट वाला स्टेट्स में जाकर वो ये कंफ्यूजन तैयार करने का कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले बोल रहा था बंगाल में तो दुर्गा पूजा नहीं होने देता है वो लोग, आज बोल रहा है बंगाल में तो दुर्गा पूजा का महल शुरू हो गया। ये कैसा ये कंफ्यूज पब्लिक है, कंफ्यूज पार्टी लीडर है। वो शीशे के घर में बैठ के वो पत्थर फेंकने का पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि जिस एलिगेशन भाजपा का खिलाफ है, भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट का खिलाफ है, भाजपा यूपी गवर्नमेंट का खिलाफ है, एमपी गवर्नमेंट का खिलाफ है, गुजरात गवर्नमेंट का खिलाफ है, त्रिपुरा गवर्नमेंट का खिलाफ है, असम गवर्नमेंट का खिलाफ है, वो एलिगेशंस वो यहां पे बेसलेस वे से वो यूज कर रहा है या मिसयूज कर रहा है। इसीलिए वो ये क्लियर है, वो भी जानता है, उनका पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट का तो है। वो ये जानता है कि बंगाल में आने वाला असेंबली इलेक्शन में रिकॉर्ड सीट के साथ ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। तो प्रधानमंत्री आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। तो सवाल ये है, क्या मोदी सरकार सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर भ्रष्टाचार को ढकने के लिए दूसरों पर उंगली उठाती है? बंगाल में ये सवाल हर गली हर नुक्कड़ पर गूंज रहा है और बंगाल की जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है। ध्यान रखिए, जितनी बार मोदी जी आएंगे उतनी बार बंगाल से बीजेपी की जमीन खिसक जाएगी। लेकिन बीजेपी हर बार बंगाल पर उंगली उठाती है। सवाल साफ है, देश भर में लोग काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन निशाना सिर्फ बंगाल को ही क्यों बनाया जाता है? सवाल यही है, क्या वाकई बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से लड़ रही है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथियार है? आपको क्या लगता है? क्या कुणाल घोष का हमला सही है? क्या बीजेपी वाकई में दोहरी राजनीति कर रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में।
यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।